कि जैसे ही मैंने सुना ये कोर्स लॉन्च हो रहा है इंडियन सस्टेनेबिलिटी. If you will see all the countries at the global level, the organization, everyone is talking about sustainability. आपने बिल्कुल सही कहा. MBA बच्चे आज सारी फील्ड पॉपुलर फील्ड्स है. MBA चाहे मार्केटिंग है, HR है, फाइनेंस है, सेल्स है, IT है. But in India, the takers of these programs are huge. There are lots and lots of scope. Governments are working towards it. Recent एक startup आया है जिसने अपनी कटलरी बनाई है which can be eaten after the use. So you can drink the coffee from your cup and you can eat the cup after that. Right. And to tell you, we are the first one in the country to launch MBA in sustainability and entrepreneurship. Wow. कौन लोग हैं जिनके लिए कोर्स रेलेवेंट है? This is for those people who comes from a family business background. इस नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है बट हम रिवर्ट में क्या दे रहे हैं. सो सैटरडे संडे क्लासेस आपने रखी तो दैट वाज एन अमेजिंग आइडिया. हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द स्पेशल पॉडकास्ट सेशन ऑफ GCC Global Foundation. So today we are going to talk about a newly launched course that is MBA in Sustainability and Entrepreneurship. So for that we have a special guest with us, Dr. Shivi Saxena, Director of GCC Global Foundation. Welcome ma'am, welcome to the show. Thank you Saurabh, thank you so much. I hope you are doing good. Yes, thank you. So मैम मैं बस पूछना चाहता था क्योंकि जैसे ही मैंने सुना ये कोर्स लॉन्च हो रहा है इंडियन सस्टेनेबिलिटी, आई वाज वेरी एक्साइटेड क्योंकि कुछ समझ में आ रहा था, कुछ नया हो रहा है. अभी तक हमने सुना है MBA in HR, MBA in फाइनेंस, MBA in मार्केटिंग. MBA in सस्टेनेबिलिटी बहुत नया टर्म है, बहुत नई चीज मुझे सुनने में आई एंड आई वाज वेरी मच एक्साइटेड अबाउट दिस. सी यू कैन सी आई हैव गूज़बम्प्स एज ऑफ नाउ. सो मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगा जब मैंने सुना कि हम कुछ नया करने वाले हैं, कुछ एक्साइटिंग करने वाले हैं. तो थोड़ा सा इफ यू वांट टू शेयर सम थॉट्स ऑन इट, व्हाट इज MBA in सस्टेनेबिलिटी? Hi Saurabh, thank you for such a wonderful introduction. Sustainability की अगर मैं बात करूं तो with the climate change, with the global environment changes, this has become a term which has raised our concern. If you will see all the countries at the global level, the organization, everyone is talking about sustainability, climate change, saving our earth, our planet, right? Right. Now, आपने बिल्कुल सही कहा. MBA बच्चे आज सारी फील्ड्स पॉपुलर फील्ड्स है. MBA चाहे मार्केटिंग है, HR है, फाइनेंस है, सेल्स है, IT है. बट इन इंडिया द टेकर्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर ह्यूज और उनके कंपैरिजन में जॉब्स हो गई हैं बिल्कुल कम. तो अगर आज मैं एक MBA मार्केटिंग का स्टूडेंट को जॉब ऑफर करती हूँ तो 3 to 4 लाख के पैकेज से ऊपर जॉब मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है एक मीडियोकर MBA कॉलेज के स्टूडेंट को. Right. So if I am doing an MBA marketing, I cannot get a job more than 3 to 4 lakh rupees per annum. And then I have to start from very scratch, getting into the marketing field, learning the nuances, and then gradually I will progress up the ladder for my promotions and my salary hike and all. Sustainability is such a market which is already there. So since everybody is talking about this sustainability now, there are lots of scope. Governments are working towards it. आप मानोगे नहीं, जैसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में CSR का कंपल्सरी परसेंटेज फिक्स होता था that every organization has to give a 10% of their profit into the CSR activity. Now it has changed. आपको मैं एक मजेदार बात बताती हूँ. हम तो इस सस्टेनेबिलिटी कोर्स के बारे में 2024 में सोच रहे हैं स्टार्ट करने के लिए. अगर आप शार्क टैंक इंडिया को फॉलो करते हैं तो अभी लेटेस्ट शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में एक स्टार्टअप आया था. उस स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट ये था कि पराली की जो प्रॉब्लम है जिससे कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, दे आर फाइटिंग विद दिस problem because during that Parali period or the pollution is makes the city hell. People can't breathe there at that particular point. So that startup is already doing from past 5 years. They have created the products of Parali. तो वो पराली जलाने का वो काम ही नहीं है कि वो पराली जलाने. They are creating products. So similarly there are lot of things. हम आजकल हमारी प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं they are not in use any further, right? So we don't prefer to drink water through plastic bottles. आप कटलरी की बात करो, people have switched to cutleries maybe made of bamboo. Recent एक startup आया है जिसने अपनी कटलरी बनाई है which can be eaten after the use. So you can drink the coffee from your cup and you can eat the cup after that. Right. So these are new innovative sustainable products which are coming and people are creating their marks in such startups. So since GCEC is known for its startup culture, we are a college which has created that entrepreneurship vibe in the country. So
This is why we thought that let us now club sustainability and entrepreneurship and create a beautiful program around it. And to tell you, we are the first one in the country to launch MBA in sustainability and entrepreneurship. Wow. क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो इंडिया में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन ज्यादातर उनमें फुल टाइम डिग्री पहली बात तो कोई नहीं दे रहा, शॉर्ट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, एंड दे आर टॉकिंग ओनली अबाउट सस्टेनेबिलिटी. तो GCEC इज द फर्स्ट वन व्हिच हैज क्लब सस्टेनेबिलिटी विद एंटरप्रेन्योरशिप. तो जो भी स्टूडेंट इस प्रोग्राम को करेगा उसको ना तो केवल सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज में वो अपनी जगह बना पाएगा, बट द स्टूडेंट विल आल्सो हैव अ वाइब टू स्टार्ट अ स्टार्टअप व्हिच इज अराउंड द सस्टेनेबिलिटी. वाओ, दैट्स अमेजिंग. मतलब इतना कुछ एक्साइटिंग होने वाला है. मैं तो अभी से सुन के आई एम फीलिंग सो अमेजिंग कि सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा चैप्टर है जो मुझे लग रहा है, और डेफिनेटली इसकी डिमांड है. और आने वाले टाइम पे जैसे आपने बताया कि बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं. नाउ पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग इन दैट वे, दैट डायरेक्शन के सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होने चाहिए. मार्केट को, एनवायरनमेंट को इसकी जरूरत है, एंड गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग अ लॉट ऑफ मेजर. यानी आने वाले टाइम पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है जो हमें लगता है. जैसे MBA इन HR है, MBA इन फाइनेंस है, दैट इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ पीपल. उनको पता है कि HR करा, दे विल गो इनटू द HR डिपार्टमेंट. एंड इफ यू टॉक अबाउट फाइनेंस, वो फाइनेंस में जाएंगे, मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में गए. तो MBA इन सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि ये बहुत एक नया फ्रूट है, एक नया टेस्ट है मार्केट में, तो आपके हिसाब से टारगेट ऑडियंस क्या है? कौन लोग हैं जिनके लिए कोर्स रेलेवेंट है या जो करना चाहेंगे? सौरभ, ये क्वेश्चन आपने अच्छा पूछा. तो जो ये MBA प्रोग्राम है, ये क्यूरेट किया है 3 सेगमेंट्स के स्टूडेंट्स के लिए. पहला, वो बच्चे जो रेगुलर MBA ना करके एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ में MBA करना चाहते हैं कि आज अगर मैं MBA कंप्लीट अगर अपना करता हूं तो एक रेगुलर जॉब के बियॉन्ड 10 साल बाद मैं कहां पहुंचूंगा. तो दिस सस्टेनेबिलिटी विल कवर द सोशल एस्पेक्ट, द इकोनॉमिक एस्पेक्ट, द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, द सस्टेनेबल एस्पेक्ट. तो उनका करियर एक नॉर्मल MBA करियर से 10 टाइम्स बेटर होगा. सेकेंड, दिस इज फॉर दोज पीपल हु कम्स फ्रॉम अ फैमिली बिजनेस बैकग्राउंड, क्योंकि हमारी राजस्थानी सोसाइटी में लॉट ऑफ people are there who has their businesses which is coming from their ancestors, right? Family business पीढ़ियों दर पीढ़ियों से चला आ रहा है. आगे वाली पीढ़ी को भी यही उम्मीद की जाती है कि they will also come back and join their family business. लेकिन अब जो नई जनरेशन आ रही है, they have ideas but they don't know how to start with that or how to go do something different what their families have been doing from the past, right? So this program will give them an idea that how they can, develop an entrepreneurial mindset around the sustainability. Also, their existing family business can get into the sustainable options and overachieve into their business line. Wow. And thirdly, this program is for all those employees who have that some entrepreneurial idea which they wanted to pursue along with their regular jobs, but they do not have that that spur, that when to start, how to start. They do not have the mentor to take through their journey. So for these people, they can come to these courses, and this is how the classes are also curated for this program. So wow, that's an amazing thing. क्या beautifully course design किया हुआ है आप लोगों ने, और किस जो टारगेट ऑडियंस है, यानी हर एक के लिए विन विन सिचुएशन निकल के आ रही है. यानी आज अगर मैं एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है एक MBA इन सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप. यानी अगर मैं अच्छी जॉब करना चाहता हूं तो भी मेरे लिए एक ऑप्शन खुला है, और अगर मैं एक अच्छा बिजनेस करना चाहता हूं तो भी मेरे लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. मैं कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ कर सकता हूं. तो ये बहुत ही एक अमेजिंग बात है, एंड आई कैन ऑल्सो फील द सेम, क्योंकि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एनवायरनमेंट के लिए कुछ करूं. इस नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, बट हम रिवर्ट में क्या दे रहे हैं? पॉल्यूशन दे रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो ये सब कर रहे हैं. दैट्स वाई मैं तो खुद CNG व्हीकल यूज करता हूं, ताकि एनवायरनमेंट में कुछ तो कंट्रीब्यूशन हो, चाहे छोटा सा ही सही, बट एटलीस्ट. और यही अगर सोच हम सबकी हो जाए तो मजा आ जाए. दूसरा, आपने जैसे बताया कि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. डेफिनेटली मैं कहूंगा, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे दे वर्किंग, और एक्चुअली डिस्टेंस लर्निंग क्लासेस में होता यही है कि लोग जॉब में इतना बिजी होते हैं कि वो टाइम नहीं दे पाते उस एजुकेशन के लिए. सो सैटरडे संडे क्लासेस आपने रखी, तो दैट वाज एन अमेजिंग आइडिया कि जो जॉब कर रहा है उसके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, मंडे टू फ्राइडे वो अपनी जॉब कंटिन्यू कर रहा है, और सैटरडे संडे वो रेगुलर क्लासेस भी ले सकता है. तो एक रेगुलर स्टूडेंट भी हो गया, प्लस वो वर्किंग भी हो गया. तो रेगुलर प्रोफेशन डिस्टर्ब ना करते हुए, और वो एक अच्छी डिग्री ले रहा है और आगे एक अच्छी करियर ग्रोथ ले सकता है. दैट इज प्रीटी अमेजिंग.
और सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि इसके अंदर एमबीए की डिग्री फुल टाइम मिलेगी, क्योंकि क्लासेस रेगुलर होगी। तो दिस इज नॉट एन ऑनलाइन एमबीए, दिस इज नॉट अ डिस्टेंस एमबीए, दिस इज अ प्रॉपर फुल टाइम एमबीए विद अ रेप्यूटेड और यूनिवर्सिटी। वाओ। सो मैम ये तो था कोर्स के बारे में, लेकिन क्या हमें पता चलेगा कि इस कोर्स की ड्यूरेशन क्या है, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस क्या है इस कोर्स की? तो ये जैसा कि एमबीए प्रोग्राम है तो इट इज अ फुल टाइम 2 years रेगुलर प्रोग्राम। इसकी प्रॉपर डिग्री एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप की जयपुर की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से मिलेगी। क्लासेस जरूर इसकी फिजिकल हो रही है वीकेंड पे, बट बाकी नॉर्मल एमबीए प्रोग्राम की तरह ही ये रन होता है। एलिजिबिलिटी इज 55% इन ग्रेजुएशन, इन एनी स्ट्रीम इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रीम, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी सारे एस्पेक्ट्स कवर करता है, साइंस भी, इकोनॉमिक भी, सोशल भी। सो स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम कैन रजिस्टर एंड यस कैन गेट एडमिशन इनटू दिस कोर्स। 55% एलिजिबिलिटी परसेंटेज क्राइटेरिया है ग्रेजुएशन में। And for the fee structure, you can visit the website, which is www.gccglobal.com. Also, the numbers are mentioned in the description, so you can call on the numbers and take more details. Okay, ma'am, सॉरी टू आस्क दिस क्वेश्चन, बट थोड़ा इंडियन माइंडसेट है और हमें लगता है थोड़ा सा कुछ पैसा बच जाए, तो आप भी ऑफरिंग एनी स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स की कुछ पैसा उनका बच जाए? बिल्कुल सौरभ, हमने स्कॉलरशिप्स भी रखी है, तो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स है फॉर फ्यू सीट्स। तो वो भी आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहाँ बात करके आप बिल्कुल उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग मैम। तो आपने सबका ध्यान रखा है, सो दैट इज प्रीटी अमेजिंग। सो मैम, अब तक जो आपने बताया वो काफी समझ में आया, काफी क्रिस्टल क्लियर था, लेकिन अगर कुछ करियर ऑप्शंस आप और बता सके, व्हाट आर द अदर करियर ऑप्शंस आफ्टर डूइंग एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप? So career options after doing this course will be in the worldwide corporates, MNCs. अभी आपको पता है लास्ट टाइम जो एप्पल का लॉन्च हुआ था, so they announced that they are becoming carbon neutral by 2030. So not only Apple, you talk about Microsoft, Amazon, lots of Indian companies, they are also going towards that mission of becoming carbon neutral in coming few years. So there are a lot of jobs for the people who have lot of knowledge in this field. So once the postgraduate program is completed, these companies would be welcoming the professionals who are trained in this particular domain. Secondly, the people who wanted to get into the entrepreneurial ecosystem, so this program will help them build their startups around the sustainable products, around the sustainable domain, and they can have their own startups created in this. And thirdly, since now everybody is there is a lot of noise around this, so going forward there will be a lot of people who will be equipped with this knowledge, but as of now there are very few. And since most of the companies are getting into it now, the government has made it mandatory for all the companies to contribute towards the sustainability to save the mother nature and work towards it. So not many people are well equipped. So this program will give an edge over all the competitors which are still to realize, undertake, and then compete in the market. These students will be far ahead of them, and getting a job into this field will be too easy and too smooth for them. And moreover, we have a dedicated placement team with us who will help them from their internships, which would start from semester 1 itself. And that is the beauty of the course, that along with the theory part, which will be on the weekends, the entire week will be their practical learning through internships, through relevant jobs. So the placement team will be working with them, and they will help the students doing their practical experience to internship job starting from semester 1 till semester 4. So all entire 2 years, the theory and the practical aspects will go hand in hand. Wow. So that's pretty amazing, and I hope काफी सारे सवालों के जवाब आपने हमारे दिए और काफी क्लैरिटी दी आपने इस प्रोग्राम के बारे में, that what is MBA in sustainability and entrepreneurship. तो आई थिंक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन जो मुझे लगता है कि है फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स भी, फॉर स्टूडेंट्स भी, जो अपने काम के साथ कुछ नया एडवांटेज चाहते हैं या एड ऑन चाहते हैं करियर में, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन बनता है। प्लस जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है कि चाहे वो खुद का स्टार्टअप करना चाहें या आगे फैमिली बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन निकल के आती है। तो थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग विद अस और हमें इतना कुछ बताने के लिए एमबीए इन सस्टेनेबिलिटी के बारे में। एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप if you like the video, if you're watching till here, you like the video. For more such videos, please do follow us. Thank you.